پاکستان، بلیک ویسٹرن، ریورنڈ بلیک ویسٹرن میرے دوست کی جانب سے یسوع جیسا کوئی نہیں، اس کتاب میں سے ہم آج 7واں باب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ شفاعت میں یسوع جیسا کوئی نہیں۔ ایک نہایت شکست خوردہ احساس کہ جب کبھی مدد کی ضرورت ہوگی اور مدد کو کوئی بھی نہ ہو، اس وقت کا احساس آپ کی زندگی میں کس قدر زیادہ ولولہ انگیز ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں ہم کسی کو مدد کے لیے پکاریں تو وہ مدد فراہم کر ہی نہ پائے، اور غالباً ایسا وقت بھی ہو کہ مدد فراہم کرنا ممکن نہ ہو پائے۔ ایوب کے ارد گرد ایسے دوست موجود تھے جو اسے تسلی دینے آئے تھے، لیکن ان میں سے کوئی اس کی حالت زار کو سمجھ نہ سکا، اور جب دوستوں نے چاہا کہ ایوب کی مدد کریں اور بجائے مدد کرنے کے انہوں نے معاملات کو زیادہ الجھا دیا۔ تکلیف اور ناگزیر ایام میں ایوب خواہش کرتے ہیں کہ کوئی شفاعت کرنے والا ہو جو ایوب اور پاک خدا کے درمیان کھڑا ہو سکے۔ اسی طرح اور لوگوں نے بھی تلاش کی کہ کوئی شفاعت کرنے والا میسر ہو، تو انہوں نے صرف اور صرف شفاعت کرنے والے یسوع کو پایا۔ یسوع ایک شفاعت کنندہ ہے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، ایسا پہلا تیموتھیوس 2 باب کی 5ویں آیت بیان کرتی ہے۔ خدا یسوع خدا اور انسان کے درمیان ایک مضبوط پل ہے جو ہمیں اپنے ہاتھ سے اٹھا کر خدا باپ کے حضور پیش کرتا ہے، کہ جس پر چل کر ہمیں خدا باپ تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو خدا سے چھپانے کی کوشش کی، اور خدا نے آپ خود پہل کی اور انہیں ڈھونڈنے آیا۔ خدا نے پکارا، تم کہاں ہو؟ یہ ضرور یاد رکھیں کہ جب ہم ناکام ہوں اور ڈرتے ہوں اور خداوند کے حضور چھپنے کی اپنی سی کوشش میں ہوں، تو ہمارا ایک شفاعت کنندہ ہے جو ہماری شفاعت کرتا ہے، یعنی یسوع مسیح خداوند۔ یسوع ہماری خاطر شفاعت کرنے والا ہی نہیں، بلکہ وہ خدا باپ کی حضوری میں ہمارا وکیل بھی ہے۔ جب یسوع نے اپنے شاگردوں سے اپنے آسمان پر جانے کی بات کی تو شاگرد افسردہ ہو گئے۔ یسوع نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ وہ انہیں یتیم یا اکیلا نہیں چھوڑے گا، بلکہ ان کے لیے ایک مددگار بھیجے گا۔ یہاں جس لفظ کا ترجمہ مددگار کیا گیا ہے، یہ لفظ مختلف جگہوں پر ایڈوکیٹ اور مشیر کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے، جس سے اس مددگار کی ایسی تصویر ابھرتی ہے کہ یہ ہماری ضرورت کے وقت فوراً آن موجود ہوگا۔ بائبل مقدس کے ان الفاظ سے میری اور آپ کی تسلی ہوتی ہے، جن کا ذکر پہلا یوحنا 2 باب کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے کہ اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز۔ جب ابلیس ہم پر حملہ آور ہوتا ہے جیسا ایوب پر، تو آسمان پر ہمارے لیے ایک مددگار فوراً ہماری مدد کو کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابلیس کا لگایا گیا کوئی الزام یسوع کی حضوری کی بدولت ہم پر بالکل اثر انداز نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا یسوع کامل انسان اور کامل خدا ہونے کے ساتھ ساتھ خدا باپ کی حضوری میں ہمارا شفاعت کرنے والا مددگار بھی ہے۔ جب مسیحی ایماندار ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو غور کیجئے کہ پھر ہم کس قدر زیادہ تسلی اور حوصلہ اور خوشی سے سرشار ہوں گے جب کہ ہم کو معلوم ہو گیا ہو کہ ہمارا خداوند یسوع ہمیں جو ہماری شفاعت کرنے کو بر وقت مستعد و تیار رہتا ہے، وہ ہمارے لیے خدا پاک کے گھر کا بڑا سردار قائم ہے۔ جب مسیحی ایماندار ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو غور کیجئے کہ پھر ہم کس قدر زیادہ تسلی اور حوصلہ اور خوشی سے سرشار ہوں گے جب ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارا خداوند یسوع جو ہماری شفاعت کرنے کو بر وقت مستعد اور تیار رہتا ہے، وہ ہمارے لیے خدا باپ کے گھر کا بڑا سردار قائم بھی ہے۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف اس حقیقت کی
अहमियत के बारे में सिखाता है। यीशु हमारे साथ किस कदर ज़्यादा हमदर्दी से पेश आता है। वो जानता है कि हम किस कदर बड़े दुखों के बोझ तले दबे हैं, इसलिए कि यीशु को अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में इसी तौर से दुखों के तजुर्बात से गुजरना पड़ा जो हमारी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। कि हमारा यीशु आज़माया गया, रद्द किया गया, नफ़रत और तंग नज़री और धोखाधड़ी का शिकार रहा और बड़े दुखों से गुजरा। हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत के वक्त इस बात की अहमियत होती है कि कोई ऐसा मौजूद हो जो हमारी बात समझता हुआ, कोई एक ऐसा जो हमारे साथ ज़रूरत के इन लम्हात में खड़ा हो। ऐसे दुखी लम्हात के दौरान कोई ऐसा दोस्त जो खुद आप इस दुख का तजुर्बा रखता हो, इन लम्हात में तसल्ली के लिए नहायत उम्दा मालूम होता है। और जब वो इन अल्फाज का इस्तेमाल करे, नहीं मैं समझता हूँ कि आप क्या और कैसा महसूस कर रहे हैं, तो ये अल्फाज हमें दुख बर्दाश्त करने में भरपूर मदद देते हैं और तसल्ली का बायस होते हैं। जब कोई कैंसर ज़दा खुद किसी कैंसर के मरीज़ को तसल्ली दे तो उस मरीज़ की हिम्मत बनती है, इसलिए कि कुदरत वाले खुदावंद हमारे यीशु को हमारी बीमारियों और दुखों का इल्म है। इसलिए यीशु की बदौलत हमारी दुरुस्त तौर से तसल्ली हो सकती है। सिर्फ इसीलिए ना कि खुदावंद यीशु जानता है कि हमारी हकीकी ज़रूरत क्या है। यीशु को आप किस निगाह से देखते हैं? यीशु हमें पूरे तौर पर सिर्फ समझता ही नहीं बल्कि हमारी मुकम्मल शिफात करता है। यीशु हमारी मदद करने के सिर्फ ख्वाहिश ही नहीं रखता बल्कि मुकम्मल इख्तियार और पूरी कुदरत रखता है कि जैसा वो चाहता है हम वैसे हों। किसी आम मसीही कलीसियाई रुकन की तरफ से दुआ करने का वादा कितना अच्छा और पुरयकीन मालूम होता है कि अगर यीशु आपसे दुआ करने का वादा करे तो आप किस कदर ज़्यादा इत्मीनान से बढ़ जाएंगे। ज़रूर गौर कीजिएगा। इब्रानियों 7वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है कि वो उनकी शिफायत करने के लिए हमेशा जिंदा है। इस बड़े सरदार काहिन बारे आयत नंबर 26 में वज़ाहत की गई है, चुनांचे ऐसा ही सरदार काहिन हमारे लायक था जो पाक और बेरिया और बेदाग हो और गुनाहगारों को से जुदा और आसमानों से बुलंद किया गया हो। आइए यीशु मसीह की ईमानदारों के लिए दुआ में पतरस के केस की मिसाल पर गौर करें। पतरस एक मगरूर मुतकब्बर इंसान था और पुरयकीन था कि वो यीशु की कामिल पैरवी में कभी नाकाम नहीं होगा। लेकिन यीशु जानता था कि पतरस बहुत जल्द अपनी इस वादा में नाकाम होगा और यही वजह थी कि यीशु ने पतरस को यकीन दहानी कराई कि मैं तेरे लिए दुआ करूँगा। पर बाद की ज़िंदगी में पतरस बहाल होने पर यीशु का एक ज़बरदस्त गवाही देने वाला रसूल कहलाया। एक वो शख्सियत जो हमारा निजात दहिंदा, हमारा वकील, हमारी शफायत करने वाला, हमारा मददगार भी है। जी हाँ, यीशु जैसा हमारा मददगार इस हुए ज़मीन पर कोई और नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यीशु ने हमें ज़िंदगी की राह पर बुलाने और राह पर चलने की रहनुमाई देकर अकेला छोड़ दिया हो, बल्कि यीशु खुदावंद आप खुद ज़िंदगी की इस शाहराह पर हमारे साथ चलता है, हमारे साथ खड़ा रहता है और यहाँ तक कि आसमानी खुदा बाप के पाक हजूरी में हमारी वकालत और नुमाइंदगी करता है। खुदावंद यीशु की कलीसिया के रुकन होते हुए हम कैदियों की कश्ती के मुसाफिर नहीं हैं बल्कि आज़ाद किए गए हैं और खुदावंद की कुदरत के सबब से आज़ाद होने के नाते खुदा के बेटे बेटियां होते हुए भाई और शागिर्दों के तौर पर भी अपने उस्ताद के साथ रहनुमाई में रहते हैं। यही वजह है कि कलीसिया रफ़ाकत में रहने के सबब वो हमारे नाम जानता है, इसलिए कि वो हम सब से मंसूब और हम सब उसके नाम से कहलाते हैं और इसलिए कि यीशु ही हमारे ईमान का बानी और कामिल करने वाला है। बाइबल मुकद्दस साबित करती है कि यीशु मर्द दुआ था। अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता कि यीशु शागिर्दों को छोड़कर अलग मकाम पर चला जाता। यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब में यीशु के दुआ करने के कामिल नमूना की रहनुमाई पाई जाती है, जहां यीशु ने बाप से अपने शागिर्दों और पैरोकारों के एक होने के लिए दुआ की। यीशु ने दुआ की कि वो खुदा की रफ़ाकत में चलते हुए उसके जलाल को देखें। यहाँ यीशु की उस दुआ बाबत भी गौर करें जो मसलूबियत से पहले की गई कि बागे गतसमनी में जब वो दुआ कर रहा था तो यीशु का पसीना गोया खून की बूंदें बनकर चेहरे से
टपक रहा था। यीशु ने अपने आसमानी बाप से दुआ की कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। क्या ये वो दुआ नहीं जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए की है? ये दुआ एक ऐसे मर्द दुआ की दुआई अल्फाज हैं जो तख्त पर बैठा है, ऐसा बर्रा जो शफात में लासानी और जिस जैसा और कोई नहीं है। सो मालूम हुआ कि कोई हमेशा आपके लिए दुआ करता है। जी हाँ, यीशु हमारा खुदावंद यीशु जो आसमान पर अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है, सिर्फ यीशु ही हमारे लिए दुआ नहीं करता बल्कि रूह कुदस भी हमारी शफात करता है। ये सच्चाई हमें ताज़ा दम कर देती है और कि हिम्मत ना हारे बल्कि अपने आसमानी बाप से रजू करें, ना कि उसकी हजूरी से छुपने की कोशिश करें। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे। ऐसा इब्रानियों चौथे बाब की 16वीं आयत बयान करती है। एक ऐसी बात जो यीशु मसीह को दूसरे तमाम काहिनों से अलग पेश करती है, वो ये है कि यीशु की कहानत ला तब्दील है। ये काहिन अबदी कहानत का हामिल है। बाइबल मुकद्दस में एक अजीब शख्सियत का जिक्र पाया जाता है जिसका नाम मेलकिसेदक है, जिसका ना तो कोई शुरू है और ना ही आखिर। पुराने अहदनामे के ज़माने में काहिन खिदमत में एक जगह पर चंद बरस गुजारने के बाद तब्दील कर दिए जाते थे कि दीगर इलाकों में खिदमत अंजाम दें। उनके लिए तब्दीली का एक निशान मुकर्रर था। कोई काहिन यीशु की तरह मुस्तकिल कायम नहीं रह सकता था, इसलिए कि यीशु अज़ली अबदी और खुदा के घर का काहिन जो वो अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में करता रहा, वो सब आज भी दुनिया के साथ भलाई के तौर पर नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि कहानत और खिदमत ईमान से मुतल्लिक जो तजुर्बात पहली मसीही कलीसियाँ रखती थीं, आज भी हमारी कलीसियाओं में ईमान के उन तजुर्बात और गवाही देने में मुस्तहिद होने के इस सहर के तजुर्बा से गुजरना चाहिए। इसलिए कि यीशु कल आज बल्कि अब्बद तक यकसा हमारा शफात करने वाला सरदार काहिन है। मैं दिल की गहराइयों से आपके लिए शुक्रगुजार हूँ, खुदावंद की हज़ूरी में शुक्रगुजार हूँ, आपके लिए दुआगो हूँ और ईमान रखता हूँ कि जिस सादगी से मुसन्नफ़ ने इन सच्चाइयों का बयान किया है, आप इसी तौर से दूसरों में इन सच्चाइयों का बयान करने के लिए अपने आप को पेश करेंगे। खुदावंद आपके साथ हो।